السلام علیکم. امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آج کی یہ ویڈیو اسپیسیفکلی بنائی جا رہی ہے بٹ کوائن کی کنڈیشن کو دیکھ کر. آج 29 مئی ہے اور سیٹرڈے ہے اور بٹ کوائن لائک آلویز ویکنڈ کے اوپر ناٹ سو گڈ پرفارم کر رہا ہے. لیکن ابھی ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ سمجھنا ہے آپ نے. اگر آپ کرپٹو مارکیٹ کے اندر انٹر ہو چکے ہیں اور کرپٹو ٹریڈنگ کرتے ہیں یا کرپٹو انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اور وہ دو امپورٹنٹ ایسے انڈیکیٹرز ہیں، دو امپورٹنٹ ایسی چیزیں ہیں، اگر ان کو آپ سمجھ لیں گے تو آپ کو اس مارکیٹ کے اندر بائی اینڈ لارج سچویشنز کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. اس مارکیٹ کو پریڈکٹ کرنا کچھ حد تک آسان ہو جائے گا اور یہ آپ سمجھ پائیں گے کہ کس وقت آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے، نہیں کرنی، کس وقت ٹریڈ کرنا ہے، نہیں کرنا. یہ دو کانسیپٹ سمجھنا بہت ضروری ہیں. یہ ایڈوانس یوزرز کے لیے بھی ہے، جو بگنرز ہیں ان کے لیے بھی ہے. اور آج کی جو امپورٹنٹ ایک اور نیوز ہے بہت امپورٹنٹ، وہ یہ ہے کہ آج ہم نے آئی میڈیا کے پلیٹ فارم سے آئی آر ٹریڈکس کا علیحدہ سے چینل سٹارٹ کر دیا ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ان دا کمنگ ڈیز ہم بہت سے یونیک آئیڈیاز آف انویسٹمنٹ، بہت سی یونیک منی میکنگ اپرچونیٹیز کرپٹو ورلڈ کی اور باقی ٹریڈنگ پلیٹ فارمز کی، جس کے اندر سے اسٹاک مارکیٹ بھی ہوگی، پاکستان اسٹاک مارکیٹ بھی ہوگی، یو ایس اسٹاک مارکیٹ بھی ہوگی، تمام ڈفرنٹ مارکیٹس کو ہم انشاءاللہ اس میں کور کریں گے. سو ایز اے ہول ٹریڈنگ کو ہم اب علیحدہ سے اپنے چینل پر کنٹینیو کریں گے تاکہ آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب کر سکیں، اس کی نوٹیفیکیشنز آن کر سکیں. اس کا لنک ہم باٹم پہ دے دیں گے ان دی اینڈ آف دا ویڈیو آلسو، تاکہ آپ لوگ اس کو جوائن کر سکیں اور اپڈیٹڈ رہ سکیں. سو کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، کہ سب سے پہلی بات سمجھنی ہے کہ بٹ کوائن جو ہے اس کی ڈومیننس کا کیا مطلب ہے. یہ بات سمجھنی ہے سب سے پہلے. جو بھی لوگ بٹ کوائن یا کرپٹو کرنسی کو ابھی تک ٹریڈ کر رہے ہیں ان کو یہ بات سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے، بہت ضروری ہے. بٹ کوائن ڈومیننس سے مراد کیا ہے وہ میں آپ کو ابھی سمجھاتا ہوں ایک مثال سے. ایزیوم کریں کہ ہمارے پاس ٹوٹل $100 ہیں، ٹھیک ہے جی، اور جو $100 ہیں وہ ہم نے کرپٹو کرنسی میں انویسٹ کیے ہوئے ہیں. اور اگر 100 میں سے $70 بٹ کوائن میں لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور باقی $30 دوسرے کوائنز میں لگے ہوئے ہیں، جس میں سے فار ایگزامپل ایتھیریم ہو گیا، ایڈا ہو گیا، ویٹ ہو گیا، پولیگون ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ ڈفرینٹ کوائنز ہیں. سو یہ جو ڈویژن ہے پورے پیسے کی، یہ اب 70% بٹ کوائن میں لگے ہوئے ہیں پیسے، اور 30% دوسرے کوائنز میں لگے ہوئے ہیں جن کو ہم آلٹ کوائنز کہیں گے. ٹھیک ہے، آل دا ادر کوائنز ادر دین بٹ کوائن آر کالڈ آلٹ کوائنز. ٹھیک ہے جی. سو رائٹ ناؤ ڈومیننس ہو گئی بی ٹی سی کی 70%، اور آلٹ کوائنز کی ڈومیننس یا مارکیٹ ریشو ہو گئی، پرسنٹیج ہو گئی 30%، یعنی کہ $30 100 میں سے. اور اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تو آپ کو یہ سمجھ میں آئے گی اگلی بات، کہ اگر بی ٹی سی بٹ کوائن جو ہے اگر وہ ڈراپ کرتا ہے 50% اپنی ویلیو سے، وہ 60,000 سے 30,000 کے قریب پہنچ جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 70% مارکیٹ ڈراپ کر گئی، اور اس 70% مارکیٹ میں کم از کم 50% ڈراپ آ جائے گا. یعنی کہ مارکیٹ نے ایز اے ہول کم از کم 35% ڈراپ کر جانا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی ٹرینڈز آپ دیکھ لیں، جتنے بھی آپ آلٹ کوائنز دیکھ لیں اور باقی کوائنز دیکھ لیں، وہ تمام، یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی آپ آلٹ کوائنز دیکھ لیں، میجرلی وہ تمام کے تمام بی ٹی سی کو فالو کرتے ہیں، اس کی ٹیل کو فالو کرتے ہیں. جیسے جیسے بٹ کوائن بیہیو کرتا ہے بالکل اسی طرح آلٹ کوائنز بیہیو کرتے ہیں. تو یہ بات جاننا کیوں ضروری تھی وہ میں آپ کو ابھی سمجھا دیتا ہوں. وہ اس لیے ضروری تھی کہ اگر ہم یہ گراف دیکھیں بی ٹی سی ڈومیننس کا، ٹھیک ہے جی، تو یہ نوٹس کیجئے کہ بی ٹی سی ڈومیننس شروع میں ان اراؤنڈ 2016 وہ 95% پہ تھی. یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ ویلیوز آ رہی، اور آہستہ آہستہ اوور دا ایئرز یہ کم ہونا شروع ہوئی. ٹھیک ہے، 2018 میں یہ تقریباً 38% کے درمیان گری. اس کے بعد یہ دوبارہ بڑھنا شروع ہو گئی، اور یہ جو لیٹسٹ سچویشن رہی ہے اس کے اندر اس نے ڈپ لیا تقریباً یہ 40-41 کے قریب، اور اس وقت یہ تقریباً 42-43 کے قریب
ये जो ऊपर वैल्यू आ रही है इसके करीब फॉल कर रहा है, यानी कि 43% 44% डोमिनेंस अभी भी मौजूद है बिटकॉइन की इन द मार्केट। इसका मतलब ये हो गया कि मार्केट के अंदर अभी भी 40 से 45% जो पैसा है वो बिटकॉइन में लगा हुआ है। और जिस तरह बिटकॉइन बिहेव करेगा, अगर बिटकॉइन बेरिश हो जाएगा तो मार्केट बेरिश हो जाएगी, क्योंकि 50% पैसा तो अभी भी करीब बीटीसी में ही लगा हुआ है। तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि बिटकॉइन को समझे बगैर आप इस मार्केट में कामयाब नहीं हो सकते। ये था पहला कॉन्सेप्ट। तो आई होप आपको बिटकॉइन की डोमिनेंस की बात समझ में आ गई होगी। अब बिटकॉइन बिहेव कैसे कर रहा है उसको समझ लेते हैं, यानी कि मार्केट के अंदर सेंटिमेंट्स, मार्केट के इमोशंस कैसे चल रहे हैं, मार्केट में लोग जो पैसा लगा रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं, ये देखना, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी। अभी मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चार्ट दिखाने लगा हूँ। ये है बिटकॉइन का चार्ट। ठीक है जी। अभी देखें, ये जस्ट अ सेकंड जी, ये देखें जी, ये है बिटकॉइन का चार्ट। अब 2011 जनवरी में ये देखें, इसने एक स्ट्रॉन्ग रन लिया, ठीक है, और ये रन लेकर राइज किया, उसके बाद इसने फॉल भी किया, ठीक है, यानी कि उसके बाद इसने एक अपना की लेवल मेंटेन कर लिया इस रेंज के अक्रॉस। ये तकरीबन 30,000 की वैल्यू थी, ठीक है, 30K। उसके बाद ये अरसा कितना गुजरा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखें, एक पीक इसने पकड़ी तकरीबन 42,000 की, और 42,000 के बाद ये ड्रॉप करना शुरू हुआ। ये तकरीबन जनवरी 21 की बात है, और उसके बाद ड्रॉप करके ये पूरा महीना जनवरी 21 का ये इसी लेवल में ही रहा। तो जनवरी के अंदर शुरू हुआ और जनवरी के पूरे महीने में डाउनफॉल ले लिया इसने, और उसके बाद इसने अप ट्रेंड एक पकड़ लिया, ठीक है। ये एक इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन आ गया, ठीक है। यहाँ पे लोगों ने बाइंग की बहुत ज़्यादा और राइज करना शुरू कर दिया। अब बीटीसी ने उसके बाद दोबारा ड्रॉप लिया, और ये एक नॉर्मल ट्रेंड है, फिर राइज किया, फिर ड्रॉप किया, फिर राइज किया। लेकिन अब जो हो रहा है ये अप्रैल से, वो ये मेंटेन नहीं कर पा रहा अपना ट्रेंड और फॉल कर रहा है। इस वक्त बीटीसी बिटकॉइन एक बहुत इंपॉर्टेंट की जोन में है, और वो ये देख रहे हैं आप, ये एरिया, यानी कि बिटकॉइन जो एक साल पहले तकरीबन बिल्कुल छोटी वैल्यू पे था ऑलमोस्ट, अगर मैं पीछे स्क्रॉल बैक करूं, ठीक है जी, इफ आई स्क्रॉल बैक और मैं देखूं कि पहले ये 2020 सितंबर अगस्त के दरमियान कितनी वैल्यू पे था, तकरीबन 10,000 की वैल्यू पे। उधर से तो ये अपना अप ट्रेंड मेंटेन करता हुआ आ रहा है, लेकिन अभी अगर ये इसको ब्रेक कर देता है तो क्या होगा? अगर ये की लेवल ब्रेक हो गया, और ख़ासतौर पे इस वीकेंड के ऊपर ब्रेक हो गया, क्योंकि अभी हम तकरीबन 35,000 के करीब चल रहे हैं, और ये की सपोर्ट्स इसकी सिर्फ ये 32,000 तक का एरिया है, ये मेजर एरिया है। अगर बीटीसी को डंप कर दिया गया, यानी कि बीटीसी की बहुत ज़्यादा सेलिंग हो गई, तो क्या होगा? बीटीसी डाउनफॉल देख सकता है। और अगर बीटीसी इधर से ड्रॉप किया तो इवेंचुअली इसको जो अगली सपोर्ट स्ट्रॉन्ग मिलनी है वो करीब या 20,000 की वैल्यू की है, या इवेंचुअली ये की एरिया बनेगा 18,000 का। यानी कि बीटीसी एक ग्रेट पॉसिबिलिटी है कि अगर ये यहाँ पर मेंटेन नहीं करता तो यहाँ से ये ड्रॉप करके एक बेरिश ट्रेंड शुरू कर लेगा, और अगर ये बेरिश हो गया तो क्या होगा? जिन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया था करीब इस रेंज में, देख रहे हैं, ठीक है, 50,000 की रेंज में, उन लोगों ने तो ये सोच के बाय किया ये तो ऊपर जा रहा है, और हो सकता है उन्होंने, बहुत से लोगों ने होल्ड भी किया हो। ये की एरिया वो लोग देख रहे हैं, ठीक है। मार्केट में वो इन्वेस्टर्स जिसने ये टॉप का एरिया यहां पर इन्वेस्टमेंट की थी, ठीक है जी, और पैसे बहुत ज़्यादा लगा दिए थे, वो लोग इस की एरिया को देख रहे हैं, और बहुत से उनमें से ऐसे हैं कि जो यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि ये बिटकॉइन यहाँ से फॉल ना करे, क्योंकि अगर ये फॉल कर गया और ये 20,000 के करीब पहुँच गया,
या 18,000 के करीब पहुंच गया तो उनकी बहुत सी इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो गई, या उनकी बहुत सी इन्वेस्टमेंट बहुत लंबे अरसे के लिए अब फंस गई है, उनको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। तो होगा क्या, जिन लोगों ने, या तो जिनका टेम्परमेंट बहुत स्ट्रांग है, वो क्या करेंगे, वो होल्ड कर लेंगे, जिसको नॉर्मली HOLD की बजाय HODL कहा जाता है। ओके, इसको इन शॉर्ट कहते हैं क्रिप्टो मार्केट में होल्ड ऑन टू योर डेयर लाइफ। ठीक है जी, यानी कि आप कोशिश कर रहे हैं कि आपने जितने पैसे पे भी ये ख़रीदा था उतने पैसे तक के जाने का आप इंतज़ार करेंगे, आप वेट करेंगे कि बिटकॉइन जो नीचे गिर गया है वो वापस ऊपर चला जाए। सो ये कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। ये जो होल्ड करने का कॉन्सेप्ट बहुत कॉमनली यूज़ होता है इन द क्रिप्टो मार्केट, ये किन लोगों के लिए है? ये वो लोग हैं जो 50,000 के करीब खरीद चुके हैं, मे बी वो लोग भी होल्ड कर लें कि जी चलो जी अब हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा था वो हम नहीं लगाते। लेकिन जब मार्केट बेरिश होती है और आपके 10 लाख 5 लाख के करीब पहुंच रहे होते हैं तो पीपल कैन नॉट होल्ड, मेजर पीपल डू नॉट होल्ड। ये मार्केट का इस वक्त सेंटिमेंट है। मार्केट ड्रॉप करेगी तो लोग सेलिंग करेंगे, एक्सेसिव सेलिंग होगी और प्राइसेस बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर जाएंगी। ये जानना क्यों ज़रूरी है और ये समझना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये जो होल्ड करने का कॉन्सेप्ट है ये उन लोगों के लिए नहीं है कि ये जो बहुत ज़्यादा ऊपर बाय कर लेते हैं। असल में ये होल्ड करने का कॉन्सेप्ट उन लोगों का है जिन्होंने 10,000 के करीब बाय किया था और उन्होंने 60,000 की पीक भी देखी और इवेंचुअली वो अब 34,000 20,000 के करीब आ जाता है। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, हम तो फिर भी मुनाफे में हैं, तो हम डायमंड हैंड्स बन जाएंगे। ये समझना है कॉन्सेप्ट। ये वो लोग हैं, ये वो वेल्स हैं, ये वो बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने 1 साल 2 साल पहले इन्वेस्टमेंट की थी, प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो गई। वही लोग यहाँ पर मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं। वो लोग टॉप पे जाके सेल करते हैं, प्राइसेस नीचे आती हैं। जो ऊपर बाय किया होता बंदा है इस एरिया में, ये जो मैंने आपको सर्कल किया, वो लोग डर के मारे यहाँ पर सेलिंग कर देते हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप क्रिप्टो मार्केट के अंदर आके टॉप पे आपने बाय कर लिया है और अब आप वेट करें कि ये फौरन बाउंस बैक कर जाएगा, इसका बाउंस बैक मे भी हो जाए, लेकिन अभी जो सेंटिमेंट्स मार्केट के हैं, अगर ये वीकेंड के ऊपर मार्केट इसको मेंटेन ना कर सकी, 30-32 हज़ार को अच्छी तरह मेंटेन ना कर सकी, तो हो सकता है हम एक स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड में चले जाएं जिसमें मार्केट के अंदर से जो पैसा है वो एग्जिट होना शुरू हो जाएगा, बिटकॉइन ड्रॉप होना शुरू कर देगा। ठीक है जी, ये समझना क्यों ज़रूरी था, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लास्ट चीज़ की तरफ चलते हैं। तो यानी कि हमारे मार्केट के सेंटिमेंट्स अभी जो हैं वो रेड हैं, बेरिश हैं। ओके, देयर आर मेनी पीपल हु वांट इट टू बी बुलिश। बहुत से लोग चाह रहे हैं कि यार ये बुल रन कंटिन्यू रहे और ये प्राइसेस बढ़ते से बढ़ती चले जाएं। ये सिर्फ उम्मीद कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगेंस्ट ऑल ऑड्स आई वुड से दिस कि जो अभी टेम्परामेंट मार्केट का जो चल रहा है, जो सेंटिमेंट्स मार्केट में चल रहे हैं, जो ट्रेंड सेलिंग के चल रहे हैं, वो बेरिश मार्केट के चल रहे हैं। और इस वक्त किस बंदे को क्या करना चाहिए, ये अब समझने का लास्ट स्टेप आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट, कि आपको समझना है आप कौन हैं। क्या आप इन्वेस्टर हैं? क्या आप जेम कॉइन हंटर हैं? क्या आप स्विंग ट्रेडर हैं? क्या आप डे ट्रेडर हैं? आप कौन हैं? इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर तो आपको अपनी कैटेगरी क्लियर नहीं है, 1 है 2 है जो भी है, तो आप कंफ्यूज्ड हैं, अभी आपने आपको क्लियर कर लें। नंबर 1, इन्वेस्टर कौन सा बंदा है? वो बंदा है जिसके पास बहुत सा एक्स्ट्रा मनी है, उसके बिजनेस का पैसा नहीं, उधार लिया हुआ पैसा नहीं, खर्ची पानी का पैसा नहीं, एक्स्ट्रा मनी है, और वो देख रहा है कि बिटकॉइन आए ज़रा 30,000 तक मैं खरीद लूँ और 2-3 साल बाद वेट करता रहूँ और तब वो प्राइस बढ़ जाएगी। उसके पास करोड़ों रुपए हैं, वो लगाना चाहता है, गुड इनफ। ठीक है जी, मोटी बात समझाना चाह रहा हूँ। क्या आप इन्वेस्टर हैं? अगर तो आप इन्वेस्टर हैं, दिस इज़ अ गुड टाइम फॉर यू। ठीक है जी, ये आपके लिए अच्छा टाइम है क्रिप्टो मार्केट में एंटर होने के लिए। आपको ऐसे कॉइन्स को देखना होगा कि जो लो कैप हैं, यानी कि जिनकी अंदर बहुत ज़्यादा भी पैसा नहीं लगा लेकिन अच्छे कॉइन्स हैं, इवन बीटीसी में आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। या फिर आप जेम कॉइन हंटर्स हैं। ये कौन से लोग हैं ये भी समझना है, इसके बारे में भी हम अपने चैनल पर एजुकेट भी करेंगे लोगों को। जेम कॉइन हंटर्स कौन से होते हैं? जेम कॉइन हंटर्स वो लोग हैं कि जो छोटा कॉइन, जैसे कि मिसाल के तौर पे $0.001 का एक कॉइन रिलीज हुआ, लेकिन उसकी टीम बहुत अच्छी है, उसका प्रोजेक्ट का फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट बहुत अच्छा है, उनकी नेटवर्किंग बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ये कॉइन आपको लगता है, जो स्टैट्स हैं, एनालिसिस करने वाले लोग हैं, उनके मुताबिक ये फॉर एग्जांपल $1 से लेकर
$5 तक जा सकता है। तो इसका मतलब यह है कि आपने ये स्मॉल कॉइन पहले वक्त से पहले, उसकी पीक आने से पहले बाय कर लिया और आपने इसके अंदर से 1000 गुना पैसे बना लिए। जी 1000 गुना की बात ही कर रहा हूँ, 100 से 1000 गुना पैसे बनाए जा सकते हैं इन जेम कॉइन्स। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि हर कॉइन ही ऐसा होता है, ठीक है। अच्छी रिसर्च बहुत ज़रूरी होती है, इसके बारे में भी हम अपने चैनल पर एजुकेशन देंगे लोगों को कि अच्छे जेम कॉइन्स ढूंढ के आपको बताया करेंगे कि अगर आप जेम कॉइन हंटर बनना चाहते हैं, और कुछ अंग्रेज़ी ज़ुबान में लोग इनको शिट कॉइन्स भी कहते हैं क्योंकि उनमें से कुछ निकलता नहीं, वो छोटे कॉइन होते हैं, कभी कभार ये फ्रॉड भी होते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड शिट कॉइन इन द मार्केट, ओके। लेकिन वील कॉल देम जेम कॉइन्स क्योंकि जेम्स का मतलब ऐसे कीमती हीरे, ऐसे स्टोन्स, ऐसे कॉइन्स कि जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ने के चांसेस होते हैं। मिसाल देता हूँ, जैसे एडा है, ठीक है जी, वो अभी तकरीबन 1 पॉइंट समथिंग के करीब, $1.5 के करीब में भी ट्रेड हो रहा है, ठीक है। ये कुछ अर्सा पहले तक, कुछ महीनों पहले तक 0.1 का था, ठीक है। यानी कि 10 गुना तो ये अपनी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर चुका है। जिसने 10 लाख लगाए थे उसके 10 लाख अभी 1 करोड़ हो चुका है विद इन अ मैटर ऑफ फ्यू मंथ्स। तो एक अच्छा जेम कॉइन था। तो क्या आप जेम कॉइन है? अगर आप जेम कॉइन हंटर है, दिस इज नॉट अ गुड टाइम फॉर यू, ठीक है। अगर आप जेम कॉइन हंटर हैं, नॉट अ गुड टाइम इन अ बेरिश मार्केट। वजह, क्योंकि जेम कॉइन्स क्या करते हैं, ये तब इंक्रीज करते हैं जब मार्केट के अंदर ओवरऑल सेंटिमेंट हाई होता है, ठीक है। मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। तो अभी अगर आप जेम कॉइन्स को हंट करना चाह रहे हैं, ढूंढना चाह रहे हैं, वो तो बहुत अच्छा टाइम है, लेकिन उनमें इन्वेस्ट कर देना अभी नॉट अ गुड आइडिया। सो दिस टाइम इज नॉट गुड फॉर दोज हु आर ट्राइंग टू बी जेम कॉइन हंटर्स। हाँ, अगर मार्केट बाउंस बैक कर जाती है तब उनके लिए ये अच्छा चांस है कि BTC भी ड्रॉप किया हुआ है, अब मार्केट के अंदर पैसा दोबारा आना शुरू हो जाएगा। सो दैट इज़ अ गुड टाइम फॉर देम टू एंटर। लेकिन अगर ये बेरिश जाती है, जेम कॉइन हंटर्स आई डोंट रिकमेंड कि वो अपने आप को, अपना पैसा इसके अंदर लगाना शुरू कर दें। तीसरी ऑप्शन, क्या आप स्विंग ट्रेडर हैं, यानी कि आप कोई कॉइन खरीदते हैं, उसकी प्राइस के इंक्रीज का आप वेट करते हैं और आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन उसको होल्ड कर लेते हैं और उसकी ट्रेंड्स को देख लेते हैं। इस वक्त जो मार्केट की सिचुएशन है वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर रही कि लोग अपना पैसा मार्केट में छोड़ें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझनी है आप लोगों ने, ठीक है। पीपल माइट डिसएग्री है, दैट इज़ देयर ओन पर्सनल ओपिनियन। ये मेरा अपना एनालिसिस है, आप अगर डिसएग्री करते हैं तो आप डिसएग्री कर सकते हैं, बिल्कुल आपका अपना ओपिनियन वैलिड हो सकता है आपके लिए। अगर मार्केट में 1, 2 दिन, 3 दिन पैसा छोड़ा तो क्या होगा? आपने जो बाइंग की है वो BTC के साथ टेदर्ड है, लिंक्ड है। अगर BTC ड्रॉप कर गया तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी ड्रॉप कर जाएगी। और एक दिन क्या, यहाँ पे तो घंटों के अंदर बहुत सारी चेंजेस हो रही हैं। सो इफ़ यू आर अ स्विंग ट्रेडर, आई डोंट रिकमेंड इट टू बी अ गुड टाइम फॉर यू एज वेल, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही है, ठीक है। जब फ्लक्चुएट कर रही है, या तो ऊपर जा रही हो या तो नीचे जा रही हो, तब तो पता होता है। लेकिन जब फ्लक्चुएट करती है मार्केट, इट्स नॉट अ गुड टाइम फॉर यू। यू नो, आपका जो पूरा एनालिसिस है, जो आपने पूरी मार्केट को स्टडी किया हुआ है, वो यूजलेस हो जाता है, ठीक है, बिटकॉइन की वजह से। क्योंकि बिटकॉइन अगर रैंडम बिहेव कर रहा है तो बाकी मार्केट भी रैंडम बिहेव करेगी। आखिरी बात आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट आखिरी बात आ गई कि क्या आप डे ट्रेडर हैं? तो क्या है? नाउ दिस इज वेयर द ट्रिकी थिंग इज, डे ट्रेडर क्या करता है, यानी कि हम अगर फॉर एग्जांपल एक दिन के अंदर एंटर करते हैं मार्केट में, तो हम देखते हैं कि मिसाल के तौर पे प्राइस ऊपर जा रही है और हमें लगता है ये प्राइस ऊपर जाएगी, तो हम यहाँ पर एंट्री कर लेते हैं और यहाँ पर एग्जिट कर देते हैं, अपना पैसा लेके वापस आ जाते हैं मुनाफा लेकर, ठीक है। दिस इज गुड टाइम। अगर मार्केट ड्रॉप कर रही है तब भी हम शॉर्ट भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। टॉप पे बाय किया, यहाँ पे सेल किया, डिफरेंस में शॉर्ट कर लिया। लेकिन ये बहुत रिस्की टाइम भी है। वजह, क्योंकि मार्केट बहुत जल्दी फ्लक्चुएट भी करती है। तो डे ट्रेडर्स के लिए कोई भी टाइम, चाहे बेरिश मार्केट हो या बुलिश मार्केट हो, बढ़ती मार्केट हो, गिरती मार्केट हो, दोनों वक्त डे ट्रेडर के लिए बहुत अच्छे हैं। लेकिन ये जो टर्बुलेंस टाइम है, ये समझना है, ये ऐसा वक्त है जिस वक्त BTC और ये क्रिप्टो मार्केट डिसाइड कर रही है कि हम सांस ले रहे हैं या सांस छोड़ रहे हैं, ठीक है। ये कश्मकश का टाइम है, ये इन बिटवीन्स हैं, ठीक है। और इन बिटवीन के अंदर मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर भी जा सकती है, एकदम से नीचे भी आ सकती है, फिर ऊपर जा सकती है। कोई टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करता भाई, ठीक है। मार्केट के अंदर सिर्फ सेंटिमेंट्स काम कर रहे हैं इस वक्त, सिर्फ इमोशंस काम कर रहे हैं, और इमोशंस का कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं होता, ठीक है। सो वेरी सिंपल,
اس وقت ڈے ٹریڈرز بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن بہت کیئرفل ہونا پڑے گا آپ کو. اگر آپ نے غلط ٹریڈز کرنا شروع کر دیں کنزیکٹیولی تو آپ کا پیسہ ضائع ہونا شروع ہو جائے گا. تو اس وقت کیا کیا جائے؟ بیسٹ سولوشن یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کیا جائے. اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں اچھے کوائنس کی طرف، اپنا انالیسس بہتر کریں، مارکیٹ کی سمجھ بہتر کریں، انڈرسٹینڈ کریں مارکیٹ کو، اور جب اپرچونٹی اچھی ملے تب ٹریڈ کریں اگر آپ ڈے ٹریڈر ہیں. ٹھیک ہے، آئی وڈ ریکمینڈ سوئنگ ٹریڈرز ٹو اسٹے اوے. اپنے پیسے کو یو ایس ٹیدرز میں رکھیں تاکہ جب اچھا مومنٹ آئے تب ہنٹ کریں. اور اگر مارکیٹ اپ ٹرینڈ میں جاتی ہے تو یس، جیم کوائنس از اے گریٹ اپرچونٹی جہاں پر چھوٹے کوائنس میں تھوڑا سا پیسہ لگا کے بہت زیادہ بڑھایا جا سکتا ہے. انویسٹرز کے لیے بھی اچھا ٹائم ہے اگر وہ لانگ ٹرم دیکھنا چاہتے ہیں تو کنفرم ہونے دیں کہ آپ کا ٹرینڈ ڈاؤن ورڈ ہے. جب وہ اپنے ڈپ لے جائے پوری تب اپنی انویسٹمنٹ ان پیسز کریں اور تب اس میں سے فائدہ ہونے کے چانسز ان دا لانگر رن ہے. تو میرا مقصد ہی اس ویڈیو کا پورا تھا کہ آپ لوگوں کو ایک زومڈ آؤٹ امیجنیشن دے دوں کہ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ ہو یو آر. ٹھیک ہے نا، ہو یو ٹرولی آر، آپ کون ہیں ان دا کرپٹو مارکیٹ. اگر آپ کو یہ نہیں پتا آپ کون ہیں سو آپ تو یہاں پہ رل جائیں گے، آپ تو یہاں پر اپنے آپ کو ضائع کر دیں گے. سو پلیز ڈیسائیڈ ہو یو آر آؤٹ آف دیز 4. آپ کون ہیں؟ ہو سکتا ہے آپ 2 جگہوں پر بھی لگانا چاہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ جیم کوائنس میں بھی لگا لیں اور آپ ڈے ٹریڈ بھی کر رہے ہوں، لیکن آپ کو کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ آپ کون سے والے ہیں. ٹھیک ہے جی. سو لیٹس ہوپ آپ لوگوں کی لیے یہ ویڈیو کارآمد ہوگی. آپ کو ایک بات سمجھ میں آ چکی ہوگی کہ اس وقت بی ٹی سی کی جو ڈومیننس ہے اور بی ٹی سی کے جو سینٹیمنٹس ہیں اس کی وجہ سے مارکیٹ ڈیسائیڈ ہوگی، نہ کہ ٹیکنیکل انالیسس کی بنیاد پر. ٹھیک ہے، انفارچونیٹلی دس از اے رف ٹائم ان دا کرپٹو مارکیٹ. تو اس لیے صبر کے ساتھ ویٹ کرنا ہے رائٹ اپرچونٹی کا، تب ٹریڈ کرنا ہے. اور تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. اور نیچے دیے ہوئے لنک کے اوپر کلک کر کے آپ ہمارے آئی آر ٹریڈکس جو چینل ہے اس کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں. لنک از گیون ان دا باٹم. تو ہم ان شاء اللہ تعالیٰ ان تمام جو اپرچونیٹیز ہیں یہ انویسٹرز کے لیے بھی، جیم کوائن ہنٹرز کے لیے بھی، سوئنگ ٹریڈرز کے لیے، ڈے ٹریڈرز کے لیے، ان تمام لوگوں کے لیے ہم اپنے چینل کے اوپر بہت سی اپڈیٹس لانے والے ہیں. بہت امپورٹنٹ اپڈیٹس ریگولرلی آیا کریں گی آپ لوگوں کے لیے. سو ہو ایور یو آر این انویسٹر، یو آر اے جیم کوائن ہنٹر، یو آر اے سوئنگ ٹریڈر اور ڈے ٹریڈر، آپ کے لیے یہ چینل آئی ہوپ بڑا مفید ثابت ہوگا. بہت بہت شکریہ، والسلام.